राजीव, अरे आइए आइए। मैंने आपसे बोला कि यार क्या हैंडसम हमारा डायरेक्टर है यार ये। माइक है प्लीज। ओह क्या बात है सर, ऐसा नहीं, आपके फैन है सर यहाँ पे बहुत सारे। मैं कहता हूँ मजाक समझ रहे थे। ओके, जैसे कि टीजर की पहली बात तो ये होता है, क्या कॉन्सेप्ट क्या था यार? सब रिवर्स में चल रहा था पूरा, क्या कॉन्सेप्ट था वो? Hello everybody and thank you so much for coming firstly. So the idea of the teaser was to create curiosity, and I think we've been reasonably successful in doing that. And I think I don't want to reveal more about exactly why everything is going in reverse. I think that let the film say that. But नहीं पर कुछ ज्यादा आप लोग सक्सेसफुल हो गए कि रेडियो फीवर 104 एफएम मैंने कम से कम 4 या 6 बार उसको बात किया उस बारे में कि ऐसा क्या हो सकता है, आप लोग क्या लगता है? तो सब ने कहा कि इसमें कई लोगों ने कहा थ्रिल हो सकता है, और मैं बात करूंगा। लेकिन ये दो हीरोइन नजर आ रही थी कि राजीव अपने मोहल्ले का एंड गौहर को कौन नहीं जानता है, दो हीरोइन ये कहां से लेके आया? ये यही कहीं थी, मुझे थोड़ी देर से मिली है। एक का नाम है जेमा एटकिंसन। ओके। And I was let me tell you briefly about how the film happened and all that, a little very briefly for everyone to know. Like going from the teaser and जो teaser की बात करें अनुराग, जो आप लोग का question कि why everything going in reverse. So going by that, Fever was conceived when I was very young, about 7-8 years old, and when my father spoke about Ian Fleming's and Alfred Hitchcock, and that's what Fever is all about, and it's all about childhood fantasies coming true of how we are fascinated with James Bond and Hitchcockian suspense and stuff like that, and Bond I think is incomplete without hot women. It kind of romanticizing of how you are involved with hot babes. And Gemma is when I kind of looked at her work, and she's done a few Hollywood films and films in Europe. She embodies hotness, if I can say that, and people who have kind of seen her would agree with that. And to add to the fact that I'm a big fan of football, and she is Ronaldo's ex-girlfriend, so that is how I started knowing about her. यो आई थिंक जलन थी आपको रोनाल्डो से। सिंपल क्यों नहीं बोलते यार, खत्म करो ना। Okay, and then I think the film would have been incomplete with actually a Bond girl in the film. Is a character when a spy, for a spy, the ultimate romance is to romance a Bond girl. There cannot be a bigger romance for a spy or an assassin. And that's when I kind of started searching for somebody who can really play that and embody that. And then I found Katrina, and I wrote to her, and I sent her the script, and she was gracious enough to accept it and be a part of it. And during the making of the film, I actually became I lived the life that I'm trying to portray on screen. I went to Monte Carlo, which is a quintessential Bond location. All films of Bond have Monte Carlo. So I went to Monte Carlo, and I met Katrina there, and I told her about what it is about, and she was very excited, and she came on board. So the film was complete, that here is an assassin who is romancing a Bond girl. It kind of completes the genre for me. Okay, I think आपके पास कुछ इनके बारे में मैसेज है? So since they have some commitments and they are shooting, both are shooting in Europe, so let them say something about the film and about us, and that would be, I think, very good. Can we have the AV right? You can see I'm here on set in the UK with another commitment, but I wish you all the best with the film. Huge success, you all worked so hard. Rajiv, thank you so much for casting me in this film. You're an amazing director and you made me feel very welcome on set. RK, you're an amazing leading man. You've done us all proud once again. Thank you for taking care of me. And Goa, you are absolutely stunning and an amazing co-star for me in this film. Thank you to all the crew who took care of me, made me feel welcome, and even taught me some dancing. Thank you very much. I hope you all enjoyed the trailer just as much as I did. It's amazing. Dear friends, here is Katrina Moreno. I'm so sorry not to be with you for the trailer launch of my first Bollywood movie, Fever. I was so excited to be and play in a Bollywood movie, and Rajiv gave me this great opportunity. I always dreamed to be in a Bollywood movie, so when I received the script from Rajiv, it was a great chance for me. I met Rajiv
I was here in Monte Carlo. He came here in Monte Carlo where I am now. That's great things. So the only thing that I can say it is yes, because I felt immediately something with Rajiv, but it was a great chemistry, and of course I loved the script. And thanks so much to you, Rajiv, to Rajiv Khandelwal, to everyone who is so nice with me and I spent a great moments with you in Switzerland. So now I hope that you're gonna enjoy this beautiful trailer and you're gonna enjoy the movie when it's gonna come on your theater. So I hope to see you soon. I hope to discover your beautiful country very soon. Good luck and break the legs. Ida Makwana, all the way from Zurich, Switzerland. Fever is one of the most visually stunning film of its time. And trust to see a Switzerland like you've never seen before. Though there have been many Bollywood movies which have been shot here, Fever has been shot in the towns and cities of Switzerland, which makes it a first-time experience. I wish the entire team of Fever all the very best, and it was an amazing experience to be working with you. Be suspense. अरबाज भाई, सोहेल भाई, 1 मिनट प्लीज स्टेज में आते हैं. जोरदार ताली होनी चाहिए कि देखिए ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों को प्रमोट करने वाले आजकल बहुत कम लोग रह रहे हैं. लोग चाकू छुरी तलवार लेके घूम रहे हैं, है ना, मार्केट में. लेकिन आप लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. अरबाज, सबसे पहले पूछना चाहूँगा फीवर. वेल मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे आर फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट. और मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से, बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है. परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वाचिंग दिस फिल्म. एंड ऐसे मौके पे आई फील मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. और आई एम हैप्पी कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ वंडरफुल टू हैव यू पीपल आउट हियर एंड वी जस्ट होप दैट द मैसेज ऑफ दिस फिल्म in terms of how good it is and entertaining it just reaches to a larger audience. So thank you very much everyone. Thank you. So, मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल तो अगर आपको प्रमोट करना है तो there's nothing better than having friends for you. And I'm we're so glad because as भाई said that एक हमारी जो journey है that we've grown up friends and we all make films. I was very surprised that a production like this, when I was watching, have gone and shot the film in Switzerland, in Zurich, have got an international star cast. It's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta. Sorry. And Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. And from that time, I thought he was an extremely competent actor. He's an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. It's a film that a team has put together. They've worked very hard. I've been through the journey of this film. So I know that to make this kind of film, to come out this kind of film, and to have, and you know what surprises me, I didn't realize मेरी पीठ आपकी तरफ थी, but I'm so glad that how we as friends have been here. You as the media have come to support a film like this because एक आपका support है और एक फराज अंकल का support है. अगर फराज अंकल का support है तो you can get a lot of media attention. अगर आपका support है you can get a lot of media attention. मैंने इसलिए कहा ना, तलवार कैची लेके सब खड़े हुए हैं आजकल. So I'm really glad that for a film like this, all you boys are here, girls and boys, sorry, all you guys here to support the film because media के through ही awareness होती है. And मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता लेकिन during this journey I had gone to visit Ajay to his office. मैं ऐसे ही बैठा था and he was watching the rushes. So I started watching the film. थोड़ा बहुत मैंने देखा, फिर ऐसे थोड़ा और दिखा दे, थोड़ा बहुत मैंने और देख लिया. And I found the film very interesting. It's got a unique screenplay. It's a thriller और हर चीज़ में अगर कोई thrill होती है, जैसे कि अगर एक love story में एक thrill होती है, I think कुछ होता है was one of the most thrilling love stories. क्योंकि
first Rani dies, and then you've got 7 letters, and Kajol comes back into his life. So every film which has a thrilling moment, it can be a love story, it can be a murder mystery, it can be a social film, I think keeps intrigue of the audience, and this film has managed to do that. So I wish them all the best, and I hope that this film reaches a vaster audience thanks to the media, and appreciate all you guys being here. Thank you. Made it come alive, and can Rajiv Khandelwal please come here? राजीव खंडेलवाल And गौहर खान there is Gauhar. प्लीज ऑन द स्टेज जोरदार तालियों के साथ गौहर साहब कैसा लगा ब्रो प्लीज जैसे आवाज सुनील ने कहा जिस तादाद में लोग आए इट्स क्वाइट अमेजिंग इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग फिल्म जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन और बड़े स्टार लेकिन ये बहुत एनकरेजिंग है दैट दीस पीपल हैव कम थैंक यू जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक आज जितने लोग यहाँ पर आए वाकई बहुत तादाद में राजीव गौर कंग्रेचुलेशंस बधाई हो ये फिल्म अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग नजर आ रही है तो राजीव सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा फीवर फिल्म का नाम क्यों है यार सबसे पहले तो ये बताओ मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आए थे मैंने कहा फीवर क्यों है तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय जो लाइन उनकी नहीं थी उन्होंने कोट की थी कहीं से दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज बहुत बढ़िया इज द एंग्स्ट विद इन सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री बट दीज टू गाइज आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली फ्रॉम द डे आई एंटर्ड आई डिड माई फर्स्ट पायलट मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर तब से लेकर आज तक जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था घर बुलाया आई मेट सलीम अंकल एंड आई एम लाइक आई वाज नोबडी फॉर देम बट दे स्टिल मेड एन एफर्ट टू एटलीस्ट कॉल मी and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very kind people have I hear and I think I can't ask for more. आपने तो रुला दिया था मुझे वहाँ बैठ so thank you so much and yeah so coming back to Fever I hope you guys enjoyed the trailer a lot of effort has gone in a lot of people have been involved बहुत सारे लोगों की मेहनत है ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है इसके पीछे पूरी टीम है आपने विजुअल देखे होंगे इतनी आसानी से शूट नहीं कर सकते थे इस फिल्म को जो प्रोडक्शन टीम है जो स्पॉट बॉयज़ हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं आई थिंक अगर उन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म पुल ऑफ करना ही इम्पॉसिबल था तो आई थिंक बिग थैंक्स एंड बिग कंग्रेचुलेशन टू द होल टीम फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड हियर वी आर तो बहुत जल्दी ये फिल्म आपके सामने आ जाएगी एंड लेट्स सी हाउ यू रिएक्ट टू इट बिल्कुल गौर में जो फास्ट पेसी होती हैं जहाँ पे सस्पेंस होता था चलो क्या है कहानी का एकदम अगर वन लाइनर बोलूँ तो क्या है ये वन लाइनर से पहले मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगी बट पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका कि आप यहाँ आए इट मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज अ फिल्म लाइक दिस जैसे सोहेल ने बताया कि इट रियली नीड्स ऑल योर सपोर्ट सो थैंक यू सो मच आई अप्रिशिएट इट एंड आई सी द वेरी टैलेंटेड जावेद जाफरी ऑल्सो विद अस लेडीज एंड जेंटलमैन उनके लिए जोरदार तालियां दे दीजिए बिकॉज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयान नहीं कर पाएंगे एक्चुअली क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस और सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं तो येस देयर आर मेनी एलिमेंट्स लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस इज द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ आई हैव टू सम इट अप राजीव थ्रिलेक्स ये क्या है एक्स थ्रिल तो समझ में आता है एक्स नहीं एक्स से बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं एक्साइटिंग और भी कुछ निकलता है एक्स फैक्टर और भी कुछ निकलता है एक्सीलेंट आपको क्या लगा मैं क्या बोलूँ मत बुलवाओ मेरे मुंह से
अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट these are the terms we think of, क्योंकि जब थ्रिल एक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर. अब वो एक्सोटिक लोकेशंस हैं या एक्साइटमेंट है या जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है. एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है. तो आई थिंक राजीव और 3 लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा. गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? That's a very good question actually, and I'm dying to say this, क्योंकि जब मैंने इश्क़-ज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं. एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे. बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज़्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एक रोल इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, जब लीड बोलते हैं तो लड़कियों को जिस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं. मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं. मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूँ. सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माय करियर, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी इनफ दैट आई हैव गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज. And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. Very good. राजीव, वो एक्स फैक्टर के आगे बढ़ाता हूँ मैं थोड़ा सा. 3 हीरोइन और तुम्हारा एक्स फैक्टर मैंने देख लिया जो परफॉर्म कर रहे थे उधर. देख रहा बेटा, हमने देखा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. कैसा महसूस किया? उन्होंने या मैंने? अब तुम सामने तो तुमसे पूछ लेता हूँ. बुखार चढ़ गया. Yeah, totally. नहीं, कमाल के हैं. I mean, the script for me, I mean, जिसके बारे में बात करो, जो इंटीमेसी है, जो इंटीमेट मोमेंट्स हम लोग को देखे हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं डाले गए हैं. पार्ट ऑफ द स्टोरी लाइन है. पहले दिन से मैं मालूम था कि इस बारे में फिल्म. मैं इनफैक्ट कभी ध्यान गया ही नहीं, मैंने कभी क्वेश्चन पूछे नहीं राजीव से. इसलिए नहीं कि लड़कियाँ बहुत हॉट हैं, इसलिए कि मुझे लगा ही नहीं कि इस तरह के सीक्वेंसेज हैं जो मतलब ज़बरदस्ती हैं या क्यों हैं यहाँ पे. आई थिंक ऑल दिस सीक्वेंस दैट you saw is a very important part of storytelling. And yeah, Rajiv wants to add. Actually, झूठ बोल रहे हैं. मैंने इनको कई बार बताया नहीं था कि ये वाला सीन भी है. हाँ, एक्चुअली जमा के साथ में पहले मतलब वो उस टाइम पे नहीं था, बिकॉज द फिल्म की जो एडिट पैटर्न है वो आगे पीछे था. तो हम लोग शूट भी ऐसे कर रहे थे इसके अंदर. और एक जगह हम लोग कहीं, और जमा से मैं पहली बार मिला था. एंड जमा के बारे में ऑफकोर्स सब जानते थे, हम सब मालूम. पहली बार मिलने पर ही परफॉर्मेंस मेरे हाथ पर ठंडे पड़ गए थे जब राजीव ने बोला कि अच्छा ये सड़क के बीच में खड़े हैं ना राजीव, ना वी नीड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग किस. So I remember, yeah. So it was, and on her part, मतलब वो जेमा, I mean they are very professional people. I think brilliant attitude उनका होता है. And I think she made me comfortable. जबकि उल्टा होना चाहिए. She really made me comfortable. उसके बाद by the end of the film मैं pro हो गया. I think also something interesting. Also परफॉर्मेंस की दाद देनी चाहिए कि इन्हें तीनों लड़कियों के साथ अलग परफॉर्मेंस देनी थी. So I'm sure Rajiv, you will get an award for that. कि तीनों different emotions कैसे होते हैं वो आप मूवी में देखेंगे. सर प्लीज सर एक्सप्लेन कीजिए उसको. और प्रोड्यूसर सब बैठे हैं यहाँ पे. इस फिल्म में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो लास्ट जो चीज बाकी है उसको थोड़ा सा. क्या चीज? अनुराग, मुझे लगा था कि ये सारे जो सवाल होते हैं जो they push you to the corner is done very well by the press. आप तो वो स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं. You're asking us everything possible. नहीं, पर इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनको मौका न दो ना यार. जो है यहीं निपटा लेते हैं ना हम लोग यार. नहीं, अभी तो ग्रिलिंग सेशन शुरू होगा, मुझे मालूम है. But having said that, I think ट्रेलर देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं नहीं लगा होगा that the film is actually I mean these moments are dominating this trailer because फिल्म की स्टोरी इतनी कड़क है कि आप एक बार भी नहीं आपको लगेगा कि ज़बरदस्ती डाल. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म एंड आई होप यू आल्सो फाइंड इट इक्वली इंटरेस्टिंग.
पूछूं तो मैं पूरी रात पूछ सकता हूँ क्वेश्चन क्या है, फीवर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोग भी अगर कोई पूछना चाहें। यहीं बैठी है, इस सवाल मत पूछो, बाद में बताऊंगा। टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेरी बीवी नहीं, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं यहाँ पे। तो खास वजह ये कि ये स्क्रिप्ट एक्साइट करती है मुझे लगता है कि कुछ करने के लिए होगा, यू नो, देयर समथिंग। और बाकी सारी जो टिपिकल फिल्में हैं, मुझसे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल लोग कर रहे हैं। तो एक जॉनर है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा से, और मुझे लगता है कि मैं यू नो आई विल बी 100% इन देयर। और कभी डेलिबरेटली नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस तरह की फिल्में करूँगा, बट जब स्क्रिप्ट आती हैं तो पता नहीं क्यों इस तरह की फिल्मों, यू नो, अदर फिल्म्स दैट रियली एक्साइट। सो एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई थिंक शुड नॉट बी। जी जी, मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, मैं मीडियम को नहीं देखता हूँ। मुझे अगर प्रोजेक्ट एक्साइट करता है तो मैं वो प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म हो। थिएटर में कुछ एक्साइट करेगा तो मैं वो भी करूँगा, बट आई थिंक मोस्टली आई पिक अप प्रोजेक्ट्स व्हिच रियली एक्साइट मी। आई डोंट रियली लुक एट द मीडिया। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने जो जितना भी काम किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट, इट्स हाउ मच यू रीच आउट टू पीपल। हमें कोई डर नहीं है, उन्होंने सब काम कर दिया हमारे लिए। Never kept me in suspense that way, by the way, you know. Yeah, but while shooting, I wasn't prepared for that sequence to come all of a sudden, you know. And that, I think on day one, so we knew it, and he had a certain pattern of shooting the film. So I wasn't really prepared for it then, but he never kept us under suspense. No, actually, add to that, and I don't want this mic. Thanks. I'd like to add to that कि जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी RJ, I call him RJ क्योंकि सेट पे बड़ी confusion होती थी, Rajiv, so I used to call him RJ. So RJ in the first meeting itself had told me कि देखो ये सीन है exactly स्क्रिप्ट से एक लाइन ज़्यादा नहीं, एक लाइन कम नहीं, ये रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा I will not be able to cast. So you have to be completely comfortable with that. And जैसे राजीव ने बताया कि फिल्म में ऐसा कोई भी एक भी आपको ऐसा सीन नजर नहीं आएगा जो जबरदस्ती हाँ इफेक्ट के लिए डाल दिया गया हो. इट मेक्स सेंस टुवर्ड्स द एंड आल्सो, राइट एट द बिगिनिंग आल्सो यू विल से अच्छा दैट इज व्हाई दिस हैपेंड. इनफैक्ट माय मॉम इज सिटिंग राइट हियर एंड जब मैंने स्क्रिप्ट नरेशन हुआ था मेरा, आई वेंट होम एंड आई टोल्ड मॉम, यू नो फाइनली एज एन एक्टर्स यू नो करियर में वो मौका आ गया है जब शायद मुझे ये करना पड़ेगा. द स्क्रिप्ट इज फैंटास्टिक. माय मॉम सेड हाँ अगर स्क्रिप्ट में इट मेक्स सेंस एंड इट्स ओके विद यू टू परफॉर्म देन यू गो अहेड एंड डू इट. हिम्मत नहीं बन रही थी टू सिट नेक्स्ट टू हर एंड वॉच इट, सो आई वेंट राइट एट द बैक टू वॉच द ट्रेलर, बट शी इज स्माइलिंग सो आई एम गेसिंग इट्स ओके. Maybe I can connect both the questions together. It's about the sex thing also that she's talking about. See, because when I wrote the script and I approached Gemma and approached Katrina, there is a very like a detailed clarity when you speak to them. Like every moment is explained in the script, and they understand it, and then it is performed because they kind of read the entire script in its entirety, and then they perform. So that's the clarity of that. Why are we doing what we are doing? And maybe which also Rajiv will kind of back me on that, is that they are so you know, unself-conscious, there is a word, or so kind of selfless when they are performing, or when that thing is going to happen, that it takes that sex away from it. It becomes a passionate moment rather than a sex scene, right? So it was, and similarly with Gaur, but also the point is that sometimes you don't need to say it. Like that, I remember this one particular scene, I will not go into detail, when Gaur is there, and yeah. So I had to, in between the take, because obviously I would have music on that kind of a thing. I just in between said, just go ahead, just go ahead, just, you know. But she trusts the script, so she goes ahead. You know, so that's the kind of trust that you have to have in the script and the person who's directing the film. Then it just becomes a part of the story. It doesn't kind of stand out as a sexual object, if I can call that. Yeah. Thank you for asking. I think that would the kind of a thing that comes from the trailer. No, can I say that with a lot of humbleness that this is a complete original script, and that's why I had to really work hard, because it's a difficult script to
kind of comprehend and initially, but visually kind of it translates much easier. But no, it is not. It's completely original, and I had to keep that in mind because I was approaching people who are part of different Hollywood and European industry, and I don't want to cut and also Switzerland. The entire film is backed by the Swiss government, the canton of Valais, which is entirely shot, and for the first time perhaps after Yash Ji has kind of patented Switzerland, for me to go again to Switzerland and get the backing from them to get the kind of visuals that I wanted to was a big thing for me. So the originality was very, very important because I cannot go to any international actor saying, look honey, this is a kind of a inspired script. So it is completely original. और दूसरी बात ये कि स्विट्जरलैंड में गए नहीं है, ये पूरी कहानी स्विट्जरलैंड की ही है, तो मतलब ये नहीं कि चलो यार 2 गाने के लिए स्विट्जरलैंड हो गया आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी कहानी पूरी स्टार कास्ट वहीं पर रहती है, वहीं सब है, इसलिए आई थिंक बहुत अच्छा विजुअल है. Correct. So there are characters who are Indians who live in Switzerland with Mr. Modi, whatever kind of backing expatriates. So it is these people live in Switzerland, and it's a story about Indians living in Switzerland. So nobody's kind of gone there to do a particular thing. छुट्टी पे चले जाता हूँ. मुझे लगता है मेरी लाइफ सिर्फ यही नहीं है, मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं उतना एंजॉय करता हूँ जितना मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ, बट 100% वर्क मेरी लाइफ में नहीं है. कंपार्टमेंट्स इन माई लाइफ. तो मुझे लगता है जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मुझे, और बीच में ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट आती है बीच में एक्साइट नहीं करती, कभी कभी आप काम करते हो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं, लॉट ऑफ रीजंस, मतलब सो बट देन मैं सिर्फ करने के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं वेट करना प्रेफर करता हूँ, बट सिर्फ करने के लिए कुछ भी कर लो तो मैं वो नहीं कर पाता हूँ. बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं जब नहीं कुछ करता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस समय गायब हो जाऊँगा, नज़रों से गायब हो जाऊँगा तो क्या होगा. इट डजंट रियली बॉदर मी. जब मैं नहीं दिखता हूँ आप तो सोच क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गोवा में घूम रहा होगा, लद्दाख में घूम रहा होगा, या कहीं अब्रॉड घूम रहा होगा. कोई नहीं, मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. मैं अपनी तरीके से चलता हूँ, वो ऑफकोर्स बहुत बड़े एक्टर हैं और उन जहाँ तक पहुँच गए हैं वो, आई थिंक वो उतना ही अफोर्ड भी कर पाते होंगे. एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए ऐसी फिल्में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम बनती हैं, जो थ्रिल होते हैं, स्पेस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है. और दूसरी फिल्म साइन करने के पहले आपने बोला कि मैंने डायरेक्टर से बात की थी, तो इसके लिए अगर 3 रीज़न बताएं कि फिल्म देखने के बाद क्या महसूस करेगी इंडियन पब्लिक. नहीं, सबसे पहले तो बहुत रिफ्रेश महसूस करेंगे आप. इस तरह की, मैं भी इस बात को काफ़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की स्टोरी टेलिंग आपने नहीं देखी होगी. दैट वाज वन रीज़न जो मैंने भी इस फिल्म को साइन किया था. दूसरी चीज़, आई थिंक जिस तरह से ये फिल्म शूट भी की गई है, विजुअली बहुत ही स्टनिंग फिल्म है. मुजाहिद हमारे जो डीओपी हैं, यहीं बैठे हैं कहीं पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. तो बहुत ही स्टनिंग फिल्म है. एंड थर्ड थिंग, आई थिंक परफॉर्मेंसेज. सो इट्स नॉट दैट कि मैं लीड एक्टर हूँ, आई थिंक वी ऑल आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड सो देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द फिल्म, एंड इट्स जस्ट दैट कि इर्द गिर्द हम की घूमती है कहानी, तो लगता है कि मैं लीडिंग मैन हूँ. आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर प्लेइंग कैरेक्टर्स, एंड वंडरफुल. यू विल सी एक्चुअली कि एक इटालियन एक्ट्रेस हैं, एक ब्रिटिश लड़की हैं, और हम लोग इंडिया से हैं, बट एट नो पॉइंट विल यू फील दैट बैरियर. आपको कहीं नहीं लगेगा कि यार ये बाहर की एक्ट्रेस आएगी. इट्स जस्ट very seamlessly falls in place, and so I think overall the package will be very very exciting. गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के, आपने भी तो गाने सिर्फ एक ही सुना है, काफ़ी गाने हैं फिल्म के अंदर. या जो आपने गाना सुना अच्छा लगा ना, द लव सॉन्ग. टोनी कक्कर इज सिटिंग राइट हियर लेडीज एंड जेंटलमैन. टोनी कक्कर ने गाया है, उन्होंने कंपोज किया. एक बार उनके लिए तालियां. टोनी प्लीज खड़े हो. I think that song's going to do wonderful, Tony. I'm sure the song's going to do wonderful. That's a beautiful song. 3 things that people will take home. One, I think they will go very heavy on emotions, क्योंकि ये फिल्म में एक काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, लेकिन एक बहुत ही strong message, I'm sure after the climax, people will take back some kind of an emotion with them for sure. दूसरा, performances, like Rajiv said, everyone's done brilliantly, and good music. The music is very 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 good. We have a song by Arijit, right? And yeah, Sharmali. So great soundtrack as well. Yeah. चलिए, I think best of luck. जोरदार ताली होनी चाहिए स्टारकास्ट के लिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैं चाहूँगा जितने फोटोग्राफर हैं, ओहो क्या बात है,
अरबाज भाई, सोहेल भाई, 1 मिनट प्लीज स्टेज में आते हैं. जावेद भाई, प्लीज कम ऑन द स्टेज. मेरा कैरेक्टर फीवर फिल्म में एक असैसिन का है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का है, जिसकी एक अलग दुनिया है, जो एक अलग किस्म से अपनी लाइफ जीता है और उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है. अब वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको बाद में मालूम पड़ेगा. और उसके बाद जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है. उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी के अंदर, और तब उसका पास्ट उससे आके मिलने लगता है. कुछ लोग जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे वो आने लगते हैं. अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में किस तरह के लोग होंगे, और वो अपने आप को तलाश रहा है, लेकिन उसका पास्ट उसके साथ में कैचअप कर रहा है, और किस तरह से फिर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है एंड एक पॉइंट पर आके अनवेल होता है. तो ये इस तरह की एक थ्रिलर है. बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि बी सस्पेंस्ड. सस्पेंस्ड अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, बट फिर भी यूज़ किया गया. तो प्लीज़ बी सस्पेंस्ड टिल द टाइम यू डोंट सी. डायरेक्टर साहब ने मेंशन नहीं किया था स्क्रीन में किसी आपका, तो आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ने का मालूम पड़ा तो आप कितना सस्पेंस हुआ, कितना शौक हुए इस बारे में? ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं, जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़रा बड़ी बात नहीं होती. अब कोई स्कैंडल नहीं होता. अब चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो हम छोटे शहर में भी चले जाएँ, तो आई डोंट थिंक किसिंग बड़ी बात रहेगी. तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा चर्चा करना बनता भी नहीं, क्योंकि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं. मतलब सॉरी, किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रॉन्ची नहीं नज़र आएगा. जैसे कि मैं किसी से कह रहा था कि ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है. बट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा. वो जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ. जो मेरी ऑडियंस है वो जानते हैं कि मैं एक कंटेंट ड्रिवन फिल्म में काम करता हूँ. और अगर ये माध्यम होता या ये एक ज़रिया होता अपनी फिल्म को बेचने का, तो अभी तक बहुत कहानियाँ सुन ली होती है आपने कि राजीव और बॉन्ड गर्ल का ये अफेयर, जो कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये वहाँ गए और यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, राजीव और गौहर के साथ में ये हुआ. तो ऐसी कहानियाँ हमने कहीं ना तो हमने दी. मैं आज भी कहता हूँ कि हमारा किसी का कोई अफेयर नहीं हुआ. इससे पहले की कहानियाँ कोई लीक करे कि अच्छा ये हुआ था, हम वो उस ज़रिए जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे और बड़े खुश हैं कि हम आज भी साथ हैं, सबके सब सारी कास्ट एंड सारी क्रू, एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स. बहुत इजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, आप देखेंगे. मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव ज़वेरी जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की थी. वो बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए. हमारी मेहनत एक तो परफॉर्मेंस लेवल पे थी, और दूसरी मेहनत हमारी थी लोकेशंस पे. हमने 3 सीज़न में फिल्म शूट की है स्विट्ज़रलैंड में. ये पहली फिल्म है शायद जो पूरी इंडोर आउटडोर पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है. मतलब एक पैच वर्क भी यहाँ बॉम्बे में आगे नहीं किया गया. सारे गाने जितने भी हैं सब कुछ स्विट्ज़रलैंड में हुआ है. और अलग अलग सीजन्स में रात के 1 बजे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, आपको बर्फ़ में आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए हैं क्योंकि आपने एक शर्ट पहनी थी दोपहर में, और आपका सीन 2 बजे शूट हो रहा है, तो वो एक अलग चैलेंजेस थे. जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं पहुँच सकती थी. खाना भी हम सड़क पे खाना पड़ता था. तो हम लोग सब एक शेड ढूंढते थे कि कहाँ पे थोड़ा सा इनक्लोज जगह जहाँ पे खाना खा सकें. ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था. गौहर को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस है उनको. वो जहाँ गाड़ियाँ गोल गोल घूमती हैं तो उन्हें शी फील सिक. तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि वो आगे बैठ के जाती थी. फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी. एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, जिसके अंदर 2 अलग अलग आप देखेंगे. मतलब तो या इट वॉजन ईजी, बट हर एक्टर कहेगा कि मेरा परफॉर्म करना इजी नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया. सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे. ये लोग सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत काइंड किस्म के लोग हैं.
बहुत कन्नाइविंग नहीं है, बहुत स्कीमिंग नहीं है, दिल के हैं आई थिंक। तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज अरबाज और सोहेल भाई आए, जावेद जाफरी आए, दे आर ऑल लाइक क्लोज फ्रेंड्स। वो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि ट्रेलर लॉन्च है तो चलो एक्टर्स होने चाहिए, इसके पीछे हिस्ट्री है कि ये सब लोग यहाँ पर क्यों थे। थैंक्स अ लॉट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप सबको फिल्म पसंद आए। किरदार के बारे में बहुत सारा नहीं बता सकती क्योंकि जैसे ये एक थ्रिलर और एक सस्पेंस फिल्म है तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये एक लव स्टोरी है और जो ये कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी एलिमेंट्स हैं इसमें परफॉर्म करने लायक, तो क्या किरदार है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट ये कह सकती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अपना दिमाग जानती है और क्या कर रही है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। This is your first movie and you're playing a lead role. This is not my first movie. But as a lead role, yeah. This is so how much you're excited and how much you're nervous to playing this? नर्वस तो अभी नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी है क्योंकि शूटिंग हो गई और काफ़ी अच्छी हुई है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक लीड अवतार में लोग देखेंगे जहाँ पर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सिर्फ गानों का हिस्सा या सिर्फ किसी के एक फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि एक परफॉर्मेंस करने का काफ़ी स्कोप मिला है, काफ़ी एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही, बिकॉज वो राइटर भी हैं तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लिखा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दैट इंशाल्लाह लोग जाएं और ये मूवी देखें। चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि क्यों चैलेंजिंग था वो बता दूंगी तो फिर सस्पेंस खुल जाएगा तो चैलेंजिंग काफ़ी था। एक आई वुड से कि आजकल थैंकफुली लड़कियों के लिए रोल्स अच्छे लिखे जा रहे हैं, ऐसे रोल्स लिखे जा रहे हैं एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा रोल मिला है करने के लिए। तो चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन होपफुली मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है, सो आई एम एक्साइटेड। अगर आपके रोल में बात करें, हर रोल में बहुत प्रिपरेशन करता है जी। यस, प्रेपरेशन ऑफ कोर्स काफ़ी थी क्योंकि इस मूवी में अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर में दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन आई हैव अ मोनरो मेरे कैरेक्टर में। हाँ, एक मोनरो है जो मैंने पूरे फिल्म में पहना है, तो उसको मेंटेन करना और उसके साथ टू हैव एन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास और कोई पियर्सिंग है नहीं और आज तक कभी भी आई थिंक बॉलीवुड में कोई एक फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसने मोनरो पहना हो एज अ कैरेक्टर, तो उसको काफ़ी हमने वर्क किया है। और जैसे मैंने कहा, इस लड़की के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो उन सबको निभाने में काफ़ी प्रेपरेशन। How was the experience to work with a Hollywood actor? वेरी गुड। जेमा एंड कैटरीना, बोथ ऑफ देम, जैसे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें पता होता है कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती, तो हमने काफ़ी मस्ती भी की और दोनों ही लड़कियाँ इतनी स्वीट हैं, वी गॉट लॉन्ग लाइक हाउस एंड फायर। सारे ही टीम, राजीव, मैं और दोनों लड़कियाँ एंड जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो भी, इट वाज अ ग्रेट टीम ऑल टुगेदर। एंड हमने मोर देन 1 महीना स्विट्ज़रलैंड में बिताया, तो द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल, वी हैड एक्सट्रीम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में हैं, कि वाह, ऐसी भी एक फिल्म शूट हो रही है जहाँ पर हम सिर्फ एक गाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि पूरी फिल्म ही हमने वहाँ शूट की है। और अगर आपके बोल सीन्स की बात करें तो आपने कहा कि मैं पीछे बैठकर देख रही थी मॉम के साथ, तो जब आपको फिल्म के लिए बुलाया गया, अप्रोच किया गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? कितना मुश्किल रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? अगर बोल See, coming from a regular middle class family, of course, it takes a lot of preparation आपके दिमाग में कि आप करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी और क्यों करना चाहेंगी। As an actor, I have been trained enough to know कि आपको अपने इनहिबिशंस छोड़ने पड़ते हैं टू परफॉर्म अ कैरेक्टर। थैंकफुली मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट है, जहाँ पर वो समझते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी क्या होती है। और मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तो शायद मुझे कर लेना चाहिए, या हाँ, ये फिल्म में है, 2 गाने हैं तो चलो बोल्ड सीन चलेगा। बट इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो थी, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई थी कि वो क्यों कर रही है उसका भी एक रीज़न है। ये कैरेक्टर
अगर एक गाने में एक ब्यूटीफुल किस है तो वो क्यों है, उसका भी एक रीज़न है. इट्स नॉट जस्ट रैंडमली हैपनिंग for any of the scenes in the film. So as an actor you have to be absolutely sure what you're doing. नहीं, ये पहली फिल्म है जहाँ पर गौहर खान डांस नहीं कर रही है. Yeah, actually I'm not dancing in this film. नहीं, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि in this film I get to play a beautiful role. So yes, for the first time in this film I'm not dancing. आपको मेरे किरदार के बारे में बहुत कुछ जानना है ना. जब मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ तो क्या अट्रैक्ट किया वही तो नहीं बता सकती कि क्या अट्रैक्ट किया. अगर बता दूंगी तो फिर there's no fun in it. But I can say that ये लड़की is extremely strong. जो जैसे मेरी असलियत भी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो नाइव भी है, वो प्यार में भी है. वो क्यों है, कैसे है, वो सब आपको फिल्म में पता चलेगा. थैंक यू.